Hello students. So in the previous lecture we started the human digestive system. हमने start किया था इससे and we discussed about the alimentary canal with the help of a thorough diagram. So what is alimentary canal? Alimentary canal is a long tube which starts from the mouth and ends at the anus. Is called as the alimentary canal. It is how much meters long? It is about 9 meters long. और carnivores में क्या होती है ये? छोटी होती है. Herbivores में क्या होती है ये? लंबी होती है because herbivores have to digest the cellulose also. Is that clear? So today in this lecture we are going to discuss about the parts of the alimentary canal in detail. Okay, so let's start with it. Okay, the first part is called as the oral cavity. Is called as the oral cavity. Okay, now what is the oral cavity? This much part. When I say so when I say this whole cavity in the mouth is present is called as the oral cavity. Okay, its oral cavity contains some parts. Okay, let's name them. Okay, it contains what? It contains a pair of lips. Okay, next it contains what? It contains then teeth. Then it contains what? It contains a tongue. Okay, and it ends at the pharynx. Okay, it ends at the pharynx. Okay, so basic part: lips, teeth and tongue. It also consists of cheeks. You can say palate. Is that clear? Okay, now let's see. हमारी lips, okay, हमारे lips और हमारे teeth के बीच में एक जगह रहती है. Okay, so we can see there is a space. लिप्स और टीथ के बीच में क्या रहती है? छोटी सी क्या रहती है? आपकी एक स्पेस रहती है जिसे हम बोलते हैं क्या? आपका वेस्टिब्यूल. क्या बोलते हैं आपका वेस्टिब्यूल. VESTIBULE. ओके, स्पेस विच इज कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल. ओके, देन इट कम्स फॉर टीथ. ओके, टीथ का जो बेसिकली टीथ का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ऑफ द टीथ इज फॉर मैस्टिकेशन. जो भी हम खाना खाते हैं उसको चबाने का काम कौन करता है? आपका टीथ करता है. ओके, नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टंग? द फंक्शन ऑफ द टंग इज बेसिकली व्हाट? इट इज द मिक्सिंग of food. And what is the other function? The sensation of taste. टेस्ट भी में टंग की मदद से पता चलते हैं. ओके, नाउ चीक्स फॉर्म द वॉल ऑफ द एलिमेंट और वॉल ऑफ द ओरल कैविटी. ओके, जो गाल होते हैं वो ओरल कैविटी की वॉल बना रहे हैं. सी, cheeks form the wall of the oral cavity. Is that clear? Now palate. Now what is palate? Okay, as you can see, palate क्या होता है आपका? अगर आप when you say then this is the roof of the oral cavity. जो आपकी oral cavity है, इसकी जो roof है वो कौन बनाता है? उसे क्या बोलते हैं? आपका palate बोलते हैं. Okay, it is called, what is the palate? It is the roof of the oral cavity. Okay, so let's start with the teeth first. Okay, let's start with the topic teeth. Okay, now I have made a very basic diagram of the tooth. Okay, now let's see what are the parts of a tooth. Okay, now I can make things like here. Okay, these are the gums. You can see they're what? Gums. Is that clear? And now these things, okay, these things you can see कि these are like the roots of the plant which are embedded in the soil. अगर मान लें कि एक पेड़ है और ये जमीन है तो ये उसके रूट हो गए ना पेड़ के. आपके इन्हें भी क्या बोलते हैं? आपका रूट्स ऑफ द टीथ. इन्हें क्या बोलते हैं? आपका टीथ के रूट्स बोलते हैं. ओके, रूट्स, इन्हें क्या बोलते हैं? आपका रूट्स बोल सकते हैं. ये किसी किसी टूथ में आपका एक होता है, किसी किसी में दो भी हो सकते हैं, किसी किसी में आपके ये तीन भी हो सकते हैं. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स सी ये क्या होता है आपका? दिस इज बेसिकली द रूट ऑफ द प्लांट. नाउ इट इज, इसे बोलते हैं क्या? आपका नेक. इसे क्या बोलते हैं? आपका नेक ऑफ द टीथ. नेक है टूथ का आपका. एंड दिस इज द क्राउन. दिस इज बेसिकली व्हाट? दिस इज द क्राउन ऑफ द टूथ. ओके, नाउ लेट्स सी. अगर हम ऊपर देखते हैं आपका, नाउ वी हैव, अगर हमारे पास हर एक टूथ के ऊपर, ओके, हर एक टूथ के ऊपर क्या होती है? वी हैव अ लेयर. वी हैव अ लेयर व्हिच इज कॉल्ड एज द एनामल. उसे क्या बोलते हैं? आपका द लेयर इज कॉल्ड एज द enamel. Is that clear? Now remember one thing, this enamel is the strongest substance in our whole body. Okay, हमारी body का सबसे ज्यादा strongest part क्या है आपका? It is the enamel. What is enamel? It is the strongest part of the whole body, a strongest
substance in our body. Is that clear? But remember one thing, जो enamel जो होता है आपका, this enamel is only formed during the embryonic period. Okay, जो enamel को फॉर्म बनाने वाले जो सेल्स होते हैं वो सिर्फ एक एम्ब्रियो के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, वो सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं. जितना भी enamel आपके टूथ या आपके टीथ पर होता है वो सब आपका एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर ही बन चुका होता है. उसके बाद आपका enamel नहीं बनता. ओके, सो अगर आपका इन केस किसी वजह से अगर आपके टूथ का enamel आपका खराब हो जाता है या डिसरप्ट हो जाता है तो वो वापस नहीं बन सकता. इज दैट क्लियर? ओके, तो enamel cannot be formed into the lifetime because the cells which form the enamel are present in the embryonic period. Okay, now after the enamel we have this part which is called as the dentine. Okay, this part is called as the dentine. Is that clear? Dentine is also a strong part of the tooth, but actually dentine is not as much as strong as the enamel. Enamel is the strongest substance in our whole body. Is that clear? Okay, now what actually happened? Now this part is called as the pulp cavity. This part is called as the pulp cavity. Is that clear? इसे हम क्या बोलते हैं आपका pulp cavity. Is that clear? Now pulp cavity में क्या होता है? It contains basic vessels. Okay, it contains what? Blood vessels. It contains what? Nerves. Okay, इसमें क्या होती हैं आपकी? This pulp cavity contains what? It contains blood vessels and it also contains what? Nerves. Is that clear? Okay, now so this enamel protects our tooth. Okay, जो enamel क्या करती है आपके tooth को protect करती है ताकि कोई भी खराब substance आपके teeth को damage ना करे. But what actually happen, हम लोगों में ब्रश करने की आदत नहीं होती है. ओके, रात में सोने से पहले ब्रश करके सोना चाहिए. खाना खाने के बाद अपने माउथ को रिंस करना चाहिए एक बार. ओके, तो व्हाट एक्चुअली हैपेंस समटाइम्स, अगर कोई खाना का टुकड़ा अगर यहाँ किसी दांत के पास फंसा रह गया तो दांत पर होती है एनामल. ओके, आपने अपने मुंह को रिंस किया नहीं, उस मुंह को साफ किया नहीं, तो क्या हुआ, वो खाना आपका अंदर ही पड़ा पड़ा सड़ता रहेगा आपका. इससे क्या होगा, आफ्टर सम टाइम इट डिस्ट्रॉयज द एनामल. ओके, वो क्या करता है आपका, वो एनामल को डिस्ट्रॉय कर देता है. Is that clear? enamel थोड़ी डिस्ट्रॉय हुई, फिर क्या हुआ, आप लगातार उसी हैबिट के अंदर हैं तो क्या होगा आपका enamel और डिस्ट्रॉय हुई. Is that clear? वो आपका खराब फूड पार्टिकल आपका अभी भी यहाँ पड़ा हुआ है इस तरीके से. अब क्या हुआ, जब enamel आपकी पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, the food will enter into the dentine and dentine is not as much as strong as the enamel. तो क्या होगा, यहाँ से वो जो आपकी dental caries हैं वो बहुत जल्दी नीचे बढ़ जाएंगी and as soon as the dental caries will reach into the pulp cavity, pain will occur. There will be a severe pain in the body, severe pain in the mouth. Okay, दांत में बहुत ज्यादा दर्द होगा because pulp cavity में क्या होती हैं आपकी blood vessels और nerves. Nerves माने क्या होते हैं, न्यूरॉन, जो कि ब्रेन को बताएंगे कि दर्द हो रहा है. Is that clear? तो क्या होगा आपका, इसलिए we should rinse our mouth even after eating the food and before sleeping also. Is that clear? Okay. So if we're discussing about the human tooth, it contains what? It contains enamel, it contains dentine, it contains pulp cavity which contains the blood vessels and the nerves, and it contains what? Roots. Roots can be 1, 2 or 3. Is that clear? Okay. Now it contains. Now we discuss the part of the tooth which is called as what? This part is the crown. This part is what? The crown of the tooth. This part is the neck of the tooth, and this is the gums, and these are the roots of the tooth. Is that clear? Okay, now let's discuss the human teeth are. If we talk about the human teeth, अगर हम human के दांतों की बात करते हैं तो we have 3 words. Okay, human teeth are thecodont, human teeth are diphyodont, and human teeth are हेटेरोडोंट. इज दैट क्लियर? वो क्या है आपके, ये थीकोडोंट हैं, ये डाइफाइओडोंट हैं, और क्या है आपके, ये हेटेरोडोंट हैं. इन तीनों शब्द के मतलब क्या है, लेट्स सी द मीनिंग ऑफ दीस 3 वर्ड्स. ओके, नाउ व्हाट इज थीकोडोंट? थीकोडोंट का मतलब क्या होता है कि इस आप ऐसे याद रख सकते हैं, थिक, दमदार. ओके, तो कैसे मान सकते हैं, टीथ जो होते हैं आपके
टीथ आर फिटेड, ओके, जो टीथ के जो रूट्स हैं आपके, दीज आर फिटेड इन द बोनी सॉकेट्स। ऐसे मान लीजिए कि दिस इज, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं इस जबड़े का, ओके, दिस इज द लोअर जॉ, मैंडिबल, जैसे क्या बोलते हैं आपका मैंडिबल, दिस इज द बोन ऑफ द लोअर जॉ। इस लोअर जॉ की बोन में क्या होता है, कुछ सॉकेट होते हैं, इसमें क्या होते हैं, कुछ आपके सॉकेट होते हैं। उन, अगर मान लो एक सॉकेट है, इसमें टीथ आके ऐसे रख गया, ओके, ये सॉकेट है, एक टीथ ऐसे रख गया, तो टीथ आर एम्बेडेड इन द बोनी सॉकेट्स, और उसके ऊपर क्या होते हैं, गम्स, उसके ऊपर क्या होते हैं, आपके मसूड़े होते हैं, जो बेसिकली इसको क्या करते हैं, आपका कवर करते हैं। इज दैट क्लियर? तो व्हाट इज थीकोडोन? थीकोडोन का मतलब क्या होता है आपका, you write it like that, okay, teeth are embedded in bony sockets, okay, it is called as the thecodont. What do you actually mean by diphyodont? इसका मतलब क्या होता है आपके, कि जो ह्यूमन के टीथ हैं आपके are present into the two sets, okay, human teeth are present into the two sets, okay, तो इसका मतलब क्या होगा आपका, कि human teeth are present in the two sets, okay, present in टू सेट। सेट का मतलब बताते हैं आपको, आपने सुना होगा कि बच्चे के दूध के दांत हैं, या बच्चे के पक्के दांत हैं, परमानेंट टीथ हैं, व्हाटएवर, ओके, तो वी कैन से प्रेजेंट इन व्हाट, टू सेट्स, वन इज कॉल्ड एज व्हाट, द मिल्क टीथ, अनदर इज कॉल्ड एज व्हाट, द परमानेंट टीथ, ओके, क्या होते हैं आपके वो सेट आपके, लेट्स नेम दो सेट, ओके, कॉल्ड एज व्हाट, मिल्क टीथ, एंड नेक्स्ट इज व्हाट, परमानेंट टीथ। Is that clear? Okay. Now the last one is the human teeth are thecodont, diphyodont. Human teeth are also heterodont. Heterodont का मतलब क्या होता है? अगर हम अपने मुंह के सारे दांतों को देखते हैं तो सारे दांत एक जैसे नहीं है। हेटेरो का मतलब क्या होगा आपका, अलग अलग दिखने वाले, ओके। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टीथ, ओके, हमारे पास टीथ के क्या है आपके, डिफरेंट टाइप्स हैं, ओके, तो क्या होगा आपका, इसका मतलब क्या है आपका, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ ऑन अपीयरेंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ ऑन अपीयरेंस, ओके, दिखने में टीथ जो है आपके वो अलग अलग तरह के होते हैं। अगर मैं उनका नाम लिखता हूं तो वी कैन राइट समथिंग लाइक दैट, incisors, canines, premolars, one called as what, molars. Is that clear? Okay, so let's discuss the dental formula. Okay, now what is dental formula? Okay, now देखते हैं dental formula आपका दो लोग के लिए। Next, first is for infants. Infants के लिए क्या होता है, and next is for the adults. अडल्ट्स के लिए क्या होता है, ओके। नाउ लेट्स सी, अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला फॉर द अडल्ट्स एंड व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला फॉर द इन्फेंट्स, इज दैट क्लियर? ओके, नाउ लेट मी रिप्रेजेंट द ओरल कैविटी। अगर मैं टीथ को रिप्रेजेंट करता हूं तो कैसे दिखेंगे आपका, नाउ वी कैन से दिस इज द अपर जॉ एंड दिस इज द लोअर जॉ, ओके, दिस इज द अपर जॉ, दिस इज द लोअर जॉ, ओके, क्या है आपका, ये आपका दिस इज द अपर जॉ एंड दिस वन इज द lower jaw. Is that clear? अगर आप देखें तो क्या होगा आपका, this one is the upper jaw, this one is the lower jaw, upper jaw and lower jaw, okay. If I divide this jaw like that, okay, if I divide this jaw like that, is that clear? तो आप देख पाते हैं अपने खुद के दांतों के अंदर, यहां से ये दांत सेम है, यहां से ये दांत सेम है, और जो ऐसे हैं वही ऊपर भी हैं, जो यहां ऐसे हैं वही ऊपर भी हैं आपका। तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं इस साइड से यहां के दांत लिख दूं, या इस साइड से यहां के दांत लिख दूं, या इस साइड से यहां के लिख दूं, या फिर मैं इस साइड से यहां के लिख दूं, तो बात तो सेम रहेगी, ओके। तो the dental formula in adults, you have to remember two things, okay, आपको दो चीजें रखनी, dental formula in the infant, dental formula in the adults. adults में क्या होता है आपका, it is 2 1 2 3, क्या होगा आपका 2 1 2 3, remember क्या होगा आपका 2 1 2 3, okay. now इसमें क्या होगा आपका, infants में क्या होगा आपका 2 1 0 2,
Is that clear? Okay. Now what is this 2123? What is 2102? Let's see. हमने बताया था आपको कि ह्यूमन के टीथ क्या होते हैं आपके. ह्यूमन टीथ आर व्हाट? दे आर व्हाट? डाइफायोडोंट. ओके, मतलब क्या होते हैं? फर्स्ट दे आर द मिल्क टीथ. वी कैन से infants are having the milk teeth and adults are having the permanent teeth. Is that clear? Okay. Now let's see. हमने बताया था आपको कि ह्यूमन टीथ आर आल्सो द हेटेरोडोंट, मतलब टीथ आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. इज दैट क्लियर? ओके, सो दिस 2123 इज नॉट अ एब्रप्ट नंबर. कोई ऐसा नंबर नहीं है, ये एक ऑर्डर में लगा हुआ है. इज दैट क्लियर? दिस ऑर्डर इज व्हाट? द 2 रिप्रेजेंट द इंसिजर, 1 represent the canine. Okay, this 2 represent the premolar and this 3 represent the molar. Is that clear? So we can say what? Incisor, canine, premolars and molars. Okay, similarly here incisor, canine, premolar and molar. Is that clear? Okay, now remember one thing. Okay, incisors, canines, premolars, molars. Okay, so if we calculate that total how many teeth are present in the adult, so we can say 2 1 2 3 here, मतलब 2 plus 1 3 3 2 5 or 3 8 teeth here. Okay, 2 1 2 3 ऐसे 2 1 2 3, similarly 2 1 2 3 and 2 1 2 3, मतलब क्या होगा? 8 इधर 8 इधर, 8 टीथ इधर एंड 8 टीथ इधर. तो टोटल टीथ कितने हो गए आपके ह्यूमन के अंदर, अडल्ट के अंदर? 32 टीथ. ओके, टोटल टीथ कितने ह्यूमन के अंदर आपके? 32. नाउ लेट्स सी द टीथ इन द infants. We have what? 5. Okay, 5 this side, 5 this side, 5 this side and 5 this side. टोटल टीथ कितने होंगे इन्फेंट के अंदर आपके? 20. ओके, नाउ एक बात यहाँ याद रखने की है, प्रीमोलर्स आर एब्सेंट इन द इन्फेंट. इन्फेंट में क्या होते हैं? प्रीमोलर आपके एब्सेंट होते हैं. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स सी द फंक्शन. ओके, नाउ अगर हम बात करें फंक्शन की, ओके, सो व्हाट एक्चुअली द फंक्शन ऑफ द your incisor is what? Incisor function क्या होता है आपका? It's for cutting. It's for what? Cutting. आप कुछ काटना है तो बेसिकली अगर आप इफ यू टेक अ एप्पल, यू डोंट ईट इट बाय लाइक दिस वन कि आप एप्पल उठाया अंदर सीधे मोलर दे दिया. यू ईट लाइक दिस वन. ओके, इंसिजर वर्क, आपने इंसिजन दिया, आपने काट दिया. ओके, नेक्स्ट क्या होता है आपका? कैनाइंस. कैनाइंस किस होता है आपके? पॉइंटी, दीज टीथ. ओके, दीज आर व्हाट? पॉइंटी टीथ. से क्या होता है कि टीयरिंग में काम करते हैं. दे हेल्प इन टीयरिंग. ओके, फॉर एग्जांपल, ओके, दे हेल्प इन व्हाट? टीयरिंग. And these premolar and molar, they both help in what? Chewing. दोनों किसमें काम करते हैं? चबाने में काम करते हैं. फूड को मैस्टिकेट करते हैं. फूड को क्या करते हैं आपका? ये फूड को च्यू करने में, मैस्टिकेट करने में हेल्प करते हैं. इन व्हाट? मैस्टिकेशन. Okay, so this is all about the teeth you need to know. Okay, so let's start with the tongue. Let's start with the tongue. Okay, now this is a basic diagram of the tongue. Okay, now this is the tongue. It is a muscular organ. tongue क्या है आपका? It is a muscular organ. Okay, tongue का function क्या होता है? The function of the tongue in the digestion is what? Is to mix the food which is masticated by the help of the टीथ. वो खाना जिसे दांत चबा रहे हैं उसे ढंग से मिलाने का काम कौन करता है? आपका टंग करती है. तो टंग का फंक्शन क्या होता है आपका? मिक्सिंग ऑफ फूड विच इज मैस्टिकेटेड बाय टीथ. इज दैट क्लियर? एक और फंक्शन क्या होता है? टंग के पास क्या मिलते हैं आपको? टंग कंटेन टेस्ट बर्ड्स. टंग पे क्या मिलते हैं आपको? टंग कंटेन्स द टेस्ट बर्ड्स. ओके, टंग कंटेन द टेस्ट बर्ड. तो क्या करेंगे आपका? दीज टेस्ट बर्ड विल हेल्प इन द सेंसेशन ऑफ द टेस्ट. ओके, क्या करेंगे आपका? दे विल हेल्प इन द सेंसेशन ऑफ द taste. Is that clear? Okay, so there is a very classical diagram of the tongue. Okay, this is the tongue. Okay, this is the
टिप ऑफ द टंग, दिस इज द बेस ऑफ द टंग। ये क्या है? टंग का आपका टंग का बेस है जो अंदर को रहता है आपका, एंड दिस इज द टिप ऑफ द टंग। ओके, टंग की क्या है आपकी? ये टिप है। ओके, नाउ लेट्स सी, नाउ वी हैव हियर वी आर हैविंग द टॉन्सिल, हियर वी आर हैविंग द टॉन्सिल। ओके, हम यहाँ क्या मिलते हैं? हमको आपके टॉन्सिल मिलते हैं। ओके, अगर आपको नाम जानना है तो यू कैन रिमेंबर, इसे क्या बोलते हैं आपका? लिंगुअल टॉन्सिल। क्या बोलते हैं आपका इसे? लिंगुअल टॉन्सिल, LINGUAL, लिंगुअल टॉन्सिल। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स सी। Now, tongue contains the taste buds. Taste, there are some regions in the tongue, okay, जहां पर एक डिफरेंट टेस्ट ज्यादा अच्छे से मालूम पड़ता है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि सिर्फ इतने जगह पर यही टेस्ट मालूम पड़ता है, ये टेस्ट कहीं और मालूम नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। ओके, जो टंग की जो डिफरेंट रीजन्स है वहां क्या होता है आपका? कोई एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ टेस्ट काफी अच्छे से हम पता कर पाते हैं। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, एट द टिप वी कैन इजिली सेंस द स्वीट टेस्ट। ओके, जो मीठा टेस्ट होता है हम उसे बड़े ही आसानी से हम पता कर पाते हैं इससे आपका टंग की टिप से। इज दैट क्लियर? टिप इज मोस्ट सेंसिटिव फॉर द स्वीट टेस्ट। आप ऐसे इसका याद रख सकते हैं। हम आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम मीठी होती है, वी लिक विद हेल्प ऑफ द टंग। हम ऐसे नहीं करते पूरा आइसक्रीम मुंह में डाल दी, नो, वी डोंट डू लाइक दैट। इज दैट क्लियर? ओके, इट वुड बी क्वाइट फनी. Now this part, okay, the side of the tongue, the side and some part, you can say, you can say it like that. The side and some part of the tip is used for what? The salty. इसके लिए इस्तेमाल करते हैं आपका, हम salty के लिए इस्तेमाल करते हैं। And all the total sides of the, okay, some part of side, some part of tip used for what? Salty. And the rest part of the side का बाकी part used for what? Sour. Okay, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं आपका? sour के लिए। Okay, the sour taste, जो खट्टा टेस्ट है आपका, इट इज प्रेजेंट एट द साइड्स ऑफ द टंग। ओके, फॉर एग्जाम्पल, कभी नींबू खाइए। ओके, तो अगर नींबू खाएंगे आपको फील होगा कि वो साइड में ज्यादा आपको खट्टा खट्टा फील हो रहा है आपको। इज दैट क्लियर? ओके, तो इट्स फॉर व्हाट? सार टेस्ट। एंड द लास्ट एंड द बेस ऑफ द टंग, द पार्ट व्हिच इज नियर द बेस ऑफ द टंग, इट इज यूज्ड फॉर द बिटर टेस्ट। ओके, इसके लिए कड़वा टेस्ट ज्यादा हमें अच्छे से मालूम पड़ता है आपका टंग के बेस पर। इसलिए याद रख लीजिएगा स्टूडेंट्स, आज से बहुत से लोग आपसे कहते होंगे जब दवा खाइए वो अंदर तक रख लो, दवा को अंदर मत रखा करो, बिकॉज दवा होती है कड़वी, और कड़वा सबसे अच्छा टेस्ट कहां लगता है आपको? टंग के बैक में। अगर आप दवा को टंग के बैक में रख लेंगे तो क्या हो जाएगा? आपको बड़ी दिक्कत आ जाएगी, आपको वो दवा और ज्यादा कड़वी लगेगी और आप उल्टी कर सकते हो। तो अगर दवा खानी है तो पुट इट हियर, बिकॉज हियर आपको बिटर टेस्ट बहुत कम मिलेगा, तो आप आसानी से दवा खा पाएंगे। इज दैट क्लियर? ओके, सो दिस इज द फंक्शन, दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द टंग। ओके, लेट्स ओके, so our mouth contains 3 pair of salivary gland. Okay, for example, 3 glands are here and 3 glands are here, which are present in the pair. So we are saying what? 3 pairs of salivary gland is present in our mouth. Okay, अगर हम उनका नाम ले लेते हैं, okay, so let's name them. One is what? Parotid gland. Next is what? Submaxillary gland, या you can say, आप you can क्या बोल सकते हैं आपको उससे? Submandibular gland. And next is what? Sublingual gland. Okay, remember parotid gland, okay, which is present here. आप ऐसे खड़े हैं, okay, आप अपने जो jaws को दबाइए, okay, this part, okay, this part, it contains what? Here is present is what? The parotid gland is present here. Is that clear? Now next gland is what? Submaxillary या submandibular. मतलब क्या होता है आपका? आपकी जबड़े के नीचे, okay, it is a mandible, submandibular, mandible के नीचे, okay, and this sublingual, the word lingula is used for the tongue. Okay, क्या है आपकी? This gland is present below the tongue. Is that clear? इन तीनों ही ग्लैंड के सिक्रीशन को हम क्या बोलते हैं? सलाइवा। इन तीनों ग्लैंड के सिक्रीशन क्या बोलते हैं आपका? सलाइवा।
जैसे आप हिंदी में बोलते हैं, इसे बोलते हैं लार निकल आना, दैट्स कॉल्ड सलाइवा। इज दैट क्लियर? द सिक्रीशन ऑफ दीज 3 ग्लैंड्स इज कॉल्ड एज द सलाइवा। ओके, अब सलाइवा क्या होता है आपका? सलाइवा इट्स जिसे हम बोलते हैं थूक निकल, लार निकल आना, इट्स कॉल्ड एज व्हाट? सलाइवा। जो आप कभी देखा होगा आपने, कोई बहुत अच्छा खाना जा रहा हो, आप उसे खुशबू सूंघ लेते हैं, आपका पूरा मुंह सलाइवेशन, पूरे मुंह में क्या होता है? सलाइवेशन हो जाता है। इज दैट क्लियर? मुंह में पानी आ जाना, दैट्स लार इज कॉल्ड एज द सलाइवा। इज दैट क्लियर? नाउ सलाइवा कंटेन्स सम एंजाइम्स। सलाइवा में क्या होता है आपका? इट कंटेन्स, ओके, सलाइवा contains an enzyme, okay, जो क्या है आपका? इसको बोलते हैं आपका सलेवरी अमाइलेज, SALIVARY अमाइलेज। रिमेंबर वन थिंग, द वर्ड अमाइलेज, याद रखिए जहां भी वर्ड अमाइलेज आएगा तो ये अमाइलेज वो एंजाइम है जो क्या कर रहा है? इट इज डाइजेस्टिंग द कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो क्या होगा आपका? ये आपकी बॉडी के कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। इसके आप सोचो इस बात को कि जो सलाइवा कहाँ मिलता है? आपके माउथ में। उसमें क्या मिलता है आपको? एक एंजाइम जो क्या है आपका? एक एंजाइम जो क्या है आपका? सिलेवरी अमाइलेज, जो क्या करता है? इट ब्रेक्स द कार्बोहाइड्रेट, इट ब्रेक्स द कार्बोहाइड्रेट। और देख पाते हैं कि जैसे ही खाना मुंह के अंदर डालेंगे और अगर आप उसे चबाएंगे, वहीं से ही डाइजेशन आपका स्टार्ट हो जाता है। सो एज सून एज वी पुट द फूड इनटू आवर माउथ, द डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट्स बिकॉज ऑफ द सलाइवा। ओके, और सलाइवा और क्या करता है? द फंक्शन ऑफ द सलाइवा इज ऑल्सो व्हाट? फंक्शन क्या होगा आपका? एक तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन होगा आपका, नेक्स्ट फंक्शन क्या है आपका? उस फूड का ल्यूब्रिकेशन कराना। जो हम खाना खाते हैं, इट मे बी सॉलिड, इट मे बी लिक्विड, इट मे बी हार्ड, इट मे बी सॉफ्ट, ओके, तो उसका ल्यूब्रिकेशन कराना ताकि वो अच्छे से अंदर जा पाए, वो कौन कराता है आपका? सलाइवा कराता है। ओके, सलाइवा कराता है आपका द ल्यूब्रिकेशन। Is that clear? So these are the main function of the saliva at your level. Is that clear? The oral cavity ends at the pharynx. Okay, the oral cavity ends at the pharynx. Now what is pharynx? Pharynx क्या है आपका? Pharynx is that part of the alimentary canal जहां पर आपका फूड और एयर दोनों पास होता है। मतलब क्या होगा? We can say the common passage for both food and air is called as the pharynx. Okay, common, we can say the common passage for both, okay, food and air is called as the pharynx। मतलब आपके फूड के लिए भी, ओके, फूड के लिए भी और एयर के लिए भी जो कॉमन पासेज, जैसे क्या बोलते हैं आपका? फैरिंक्स बोलते हैं। इस फैरिंक्स के भी क्या होते हैं? 3 टाइप होते हैं। वी कैन से नेजोफैरिंक्स, ओरोफैरिंक्स एंड लैरेंजियोफैरिंक्स। इज दैट क्लियर? मतलब इसकी क्या है आपके? 3 टाइप, नेजोफैरिंक्स, नेक्स्ट क्या होगा आपका? ओरोफैरिंक्स, एंड नेक्स्ट क्या होगा आपका? लैरेंजियोफैरिंक्स। ओके, इस बात को हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। फैरिंक्स का वो हिस्सा जो आपकी नेजल कैविटी के पीछे है, बिहाइंड द नेजल कैविटी। ओके, क्या होगा आपका? बिहाइंड नेजल कैविटी। ओके, उसे क्या बोलेंगे आपका? नेजोफैरिंक्स। फैरिंक्स का वो हिस्सा जो कहां है आपका? विच इज बिहाइंड द ओरल कैविटी, जो आपके माउथ के पीछे है, जो ओरल कैविटी के पीछे है, उसे क्या बोलते हैं आपका? ओरोफैरिंक्स। एंड फैरिंक्स का वो हिस्सा जो कहां मिलता है आपको? विच इज बिहाइंड द आपके वॉइस बॉक्स, विच इज बिहाइंड द लैरिंक्स, जो आपके लैरिंक्स के पीछे है, उसे हम क्या बोलते हैं आपका? लैरेंजियोफैरिंक्स। ओके, द पार्ट ऑफ द फैरिंक्स विच इज बिहाइंड द लैरिंक्स, ओके, उसे क्या बोलते हैं आपका? दैट पार्ट इज कॉल्ड एज द लैरेंजियोफैरिंक्स। इज दैट क्लियर? ओके, ईसोफेगस, इट इज आल्सो कॉल्ड एज द फूड पाइप। इसे क्या बोल सकते हैं आपका? आल्सो कॉल्ड एज द फूड पाइप। ओके, this esophagus is the connection between the mouth and the stomach. You can say ये क्या है आपका? It is a pipe connecting, पाइप कनेक्टिंग, ये वो पाइप है जो क्या कर रहा है आपका? कनेक्टिंग माउथ टू स्टमक।
जो माउथ को स्टमक से कनेक्ट कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं आपका ईसोफेगस. लेट्स मेक अ डायग्राम हियर. ओके, नाउ दिस इज अ पाइप, this is stomach. Okay, this is a stomach. Okay, you notice this is stomach here. Okay, now this much part, okay, this much part, this part is the esophagus. Okay, now remember one thing, इस ईसोफेगस के अंदर कोई भी ग्लैंड नहीं होता. ओके, देयर इज नो ग्लैंड प्रेजेंट इन द ईसोफेगस. जब कोई ग्लैंड नहीं होगा तो कोई सिक्रीशन नहीं होगा. जब कोई सिक्रीशन नहीं होगा तो कोई डाइजेशन नहीं होगा. तो रिमेंबर वन पॉइंट, नो डाइजेशन अकर्स इनटू द esophagus. Okay, food pipe. Okay, this is the oral cavity, this is the esophagus, then this is stomach. Okay, what is esophagus? It is the connection between the oral cavity and the stomach. Okay, so when we swallow the food from the oral cavity into the food pipe, okay, there is a sphincter. There is a what? There is a sphincter which is called as the upper esophageal sphincter. Okay, जो esophagus के ऊपर है उसे क्या बोलते हैं आपका upper esophageal sphincter. और जो आपका esophagus के नीचे है उसे क्या बोलते हैं आपका lower esophageal sphincter. ओके, अब सोचते हैं sphincter क्या बला है. sphincter क्या होते हैं? कुछ गेट्स होते हैं. sphincter क्या होता है? कुछ आपके गेट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल sphincters are like that. अगर ये मान लीजिए एक पाइप है, दिस इज व्हाट अ पाइप, इसमें गेट है आपका जो हमेशा क्या रहता है आपका बंद रहता है. जब भी यहां से कोई फूड आता है ये कुछ वक्त के लिए खुलता है, फूड पास करता है, फिर ये बंद हो जाता है. इज दैट क्लियर? मतलब क्या बोल सकते हैं आपका, दीज स्फिंक्टर आर द गेट व्हिच आर नॉर्मली क्लोज्ड बट ओपन ओनली व्हेन सम मटेरियल, द फूड मटेरियल, समथिंग पासेस थ्रू इट. इज दैट क्लियर? ओके, so from this lower esophageal sphincter we enter into this stomach. Okay, now what is this stomach? It is a, you can say it is a J-shaped organ. It is a J-shaped organ. Is that clear? Okay, now what actually happens when we eat food? It goes into the stomach. It goes into the stomach. और stomach में जाके क्या होता है? It goes into the stomach and get stored there. Okay, तो क्या होता है आपका? Food goes in stomach and remain there temporarily. कुछ वक्त के लिए जो खाना होता है आपका वो स्टमक में ही रहता है. एंड रिमेंबर, स्टमक में क्या होता है आपका? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस. एक सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है इसमें आपका? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. क्या होगा इसमें आपका? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस इनटू दिस स्टमक. इज दैट क्लियर? इस स्टमक के कुछ पार्ट होते हैं. स्टमक क्या होता है? कुछ आपके पार्ट होते हैं. मेनली हम इसे बहुत क्रूडली डिवाइड करते हैं इसके 3 पार्ट के अंदर. वी कैन से दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द कार्डियक पार्ट, this part is called as the fundic part, you can say fundic part, and this part is called as the pyloric part. Okay, cardiac, fundic and pyloric. Is that clear? Okay, now we can see this black, the organ which I made in the black, जो मैंने काले से बनाया है वो क्या है आपका? स्टमक है. जो लाल से बनाया है दिस इज द duodenum. Duodenum is a part of the small intestine. Remember the previous lecture. Is that clear? Okay, so स्टमक से duodenum के अंदर एंट्री करने के लिए there is also one sphincter which is called as the pyloric sphincter. क्या बोलते हैं उसे? That sphincter is called as the pyloric sphincter. Okay, it is called as the pyloric sphincter. Okay, sphincter which leads the entry from the stomach into the duodenum. It is called as the pyloric sphincter. स्टमक क्या होते हैं आपके? 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक पार्ट, फंडिक पार्ट और पाइलोरिक पार्ट. ओके, तो क्या पार्ट, कितने पार्ट है स्टमक के आपके? It contains what? 3 parts, namely what? Cardiac, next what? Fundic, next what? Pyloric.
क्योंकि अब सोचिए कार्डियक पार्ट, द वर्ड कार्डियक इज यूज्ड फॉर द हार्ट। कार्डियक वर्ड जो किस लिए इस्तेमाल करते हैं, आपका हार्ट के लिए। जो आपका वर्ड कार्डियक है वो इसलिए बोला गया बिकॉज आपका जो स्टमक का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो बिल्कुल आपके दिल के पास होता है, इसलिए वर्ड क्या बोल दिया गया उसे, आपका कार्डियक पार्ट बोल दिया गया। इज दैट क्लियर? ओके, सो दिस इज स्टमक इज व्हाट, दिस इज जे शेप्ड ऑर्गन। फूड इसके अंदर जाता है आपका और टेम्पररी यहाँ पर रहता है आपका, और यहाँ क्या होता है, डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन टेक्स प्लेस इनटू द स्टमक एंड इट कंटेन्स थ्री पार्ट, कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक। एंड पाइलोरस से ड्यूडेनम में एंट्री करने के लिए वी हैव द पाइलोरिक स्फिंक्टर। इज दैट क्लियर? स्टमक सिक्रीट juice which is called as the gastric juice। क्या बोलते हैं आपको उसे? stomach secrete the gastric juice। okay, stomach में क्या होता है, कुछ glands होते हैं। okay, तो we can say glands of stomach secrete digestive juices। okay, gland of stomach secrete the digestive juices। okay, उस digestive juice को हम क्या बोलते हैं? that digestive juice is called as the gastric juice। क्या बोलते हैं आपको उसे? that digestive juice is called as the gastric juice। क्या बोलते हैं आपको उसे? gastric juice। remember the one thing, the word gastric is always related to the stomach। आज से कभी वर्ड क्या है आपका gastric, का मतलब क्या होगा आपका, वो स्टमक के बारे में बात करना चाह रहा है। ओके, उसे क्या बोलते हैं आपका? gastric juice। इस gastric juice के अंदर होते हैं कुछ चीजें। ओके, let's name the content of the gastric juice। okay, so first of all its content are, we can say HCl, we can say what, hydrochloric acid। Then the next we can say we are having what, mucus, and the next we are having what, pepsinogen। Then next we are having what, pepsinogen, and in the last we can also have one thing called as the CIF, which is, we discuss what is CIF, and we can also have one thing called as the prorenin, RENNIN। okay, called as what, prorenin। If I talk about the HCl, अगर मैं HCl की बात करता हूं तो it is a hydrochloric acid, ये acid है। okay, so HCl, it is what, it is a concentrated acid। okay, इसका pH normally क्या होता है, 1 से 2 होता है इसका pH, 1 to 2, which is called as what, highly acidic pH। Is that clear? Okay, अब क्या करता है, what is the function of the HCl? ये आपके स्टमक के अंदर एसिडिटी बनाता है, मतलब what actually happen, आपके स्टमक के एनवायरमेंट को एसिडिक बना देता है। ओके, तो इसका फंक्शन क्या है आपका, it makes the stomach environment acidic। Is that clear? और इसका एक और फंक्शन बोल सकते हैं, क्या करता है आपका, इट किल्स द बैक्टीरिया। ओके, जो भी बैक्टीरिया, पैथोजन आपके खाने के साथ में आ जाते हैं, HCl एसिड है, वो उस बैक्टीरिया, उस पैथोजन को आपका आसानी से मार सकता है। ओके, तो क्या होगा आपका, किल्स द पैथोजन, किल्स द पैथोजन present in food। Is that clear? ओके, ये पैथोजन क्या करता है आपका, मार देता है। अगली बात क्या होती है, रिमेंबर वन थिंग, ये क्या करता है आपका, हमारी बॉडी में होता है आयरन, हम खाना खाते हैं, खाने में आयरन होता है आपका। आयरन क्या करता है, आयरन बनाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है आपका, ब्लड के अंदर। ओके, तो सोचिए अगर आपकी बॉडी के अंदर आयरन अब्सॉर्ब होना बंद हो जाए तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, मतलब ब्लड की कमी हो जाएगी, मतलब क्या होगा, अनीमिया हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो याद रखिएगा कि आयरन की दो वैलेंसी होती हैं, एक फेरस फॉर्म Fe2+, एक फेरिक फॉर्म Fe3+। इज दैट क्लियर? तो याद रखिएगा जो आपका HCl जो प्रेजेंट होता है आपका स्टमक के अंदर, ये डाइट का जो आपका Fe3+ है, ओके, ये जो आपका Fe3+ है उसे कन्वर्ट कर देता है Fe2+ के अंदर। ओके, जो कि क्या है आपका, विच इज द एब्जॉर्बेबल फॉर्म ऑफ आयरन। अब्जॉर्बेबल फॉर्म ऑफ आयरन। ओके, Fe3+ बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं हो सकता, लेकिन Fe2+ क्या होता है, बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाता है।
इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट अगला फंक्शन क्या है, समझिए इस बात को, कि देखते हैं इस बात को कि हमने बताया कि क्या करता है आपका, इट मेक्स द स्टमक एनवायरमेंट एसिडिक। ओके, उससे क्या होता है, इस बात से क्या होता है आपका कि जो आपका HCl है वो क्या करता है आपका, इट हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ द पेप्सिनोजन। क्या करता है आपका, हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ पेप्सिनोजन। ये पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करा देता है। ओके, कहां कराता है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, देखते हैं आगे। ओके, now let's see the function of the mucus. म्यूकस क्या होता है आपका, म्यूकस इज अ स्टिकी सब्सटेंस व्हिच इज secreted by the goblet cell. Okay, remember, secreted by the goblet cells. Is that clear? ये क्या है आपका, it is a sticky substance. क्या है आपका ये, इट इज अ स्टिकी सब्सटेंस व्हिच इज सेक्रेटेड बाय द हेल्प ऑफ द गॉबलेट सेल। अब याद सोचिए इस बात को, आपके जो एसिड अगर आपके हाथ पे गिर जाए तो आपके हाथ को जला देता है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि 1 से 2 pH का हाईली एसिडिक कंसेंट्रेटेड HCl मिलता है आपके गैस्ट्रिक जूस के अंदर, तो इसका मतलब आपके स्टमक की वॉल को कौन बचाता है, द स्टमक की वॉल कौन बचाता है आपका, म्यूकस। ओके, जैसे ही खाना आपके स्टमक की वॉल में पहुंचता है तो क्या होता है आपका, म्यूकस जो होता है आपके स्टमक के अंदर वाली वॉल्स पर लग जाता है, जिससे HCl का फर्क आपका स्टमक की वॉल पर नहीं पड़ता। इज दैट क्लियर? ओके, तो क्या कह सकते हैं आपका, प्रोटेक्ट्स द वॉल ऑफ द स्टमक फ्रॉम द HCl. Is that clear? Okay, let's come to the pepsinogen. So this is the pepsinogen. Okay, now what is pepsinogen? It is an inactive enzyme. ये एक वो एंजाइम है जो क्या होता है आपका, जो इनएक्टिव है, जो भी एक्टिव नहीं है। ओके, अब ये एक्टिव कैसे होगा, मैंने बताया था आपको पिछले में, HCl makes the environment acidic because उसका pH क्या होता है आपका, the pH of acidic वो HCl is highly low which is 1 to 2. ओके, क्या करता है आपका, it convert the pepsinogen which is an inactive enzyme into the pepsin. Okay, which convert the pepsinogen into the पेप्सिन. द पेप्सिन इज एन एक्टिव एंजाइम. पेप्सिन क्या है आपका, एक एक्टिव एंजाइम है which is a protein digesting enzyme which breaks the protein into the पेप्टोन्स. तो प्रोटीन को किस में ब्रेक करता है, कहां ब्रेक करता है, आगे देखेंगे. इज दैट क्लियर? तो क्या होगा आपका, वी कैन सी व्हाट की पेप्सिनोजन ब्रेक्स द प्रोटीन. इज दैट क्लियर? अब सोचिए, आप सोचें कि सर ये डायरेक्टली पेप्सिन क्यों नहीं बनाया खुदा ने, पेप्सिनोजन क्यों बनाया पहले. सोचिए इस बात को कि हमें क्या डाइजेस्ट करना है, प्रोटीन कहाँ की प्रोटीन डाइजेस्ट करनी है हमें आपकी, वी हैव टू डाइजेस्ट द प्रोटीन ऑफ द फूड. लेकिन प्रोटीन तो सेल के अंदर भी होता है. ओके, स्टमक एक ऑर्गन है, ऑर्गन में टिश्यू होगा, टिश्यू में सेल्स होंगे, सेल में प्रोटीन होगी. अगर सोचो डायरेक्टली पेप्सिन ही निकलता तो ऐसा होता कि खाना आया ही नहीं, पेप्सिन निकल गया, तो पेप्सिन क्या करता, उससे जहां पर भी प्रोटीन दिखती वो काटना शुरू कर देती. ऐसा मान लो कि जो पेप्सिनोजन है वो आपकी सोती हुई बहन है. इज दैट क्लियर? और आप वो छेड़ने वाले भैया हो उनके, ठीक है ना. आपने क्या काम किया कि आप कौन हो, HCl, आपने सोती हुई बहन को जगा दिया, पेप्सिन बना दिया. ओके, मतलब HCl हेल्प इन कन्वर्टिंग द पेप्सिनोजन टू द पेप्सिन. आपने सोती हुई बहन को जगा दिया. अब जब ये सोती हुई बहन क्या करेगी, ये काटेगी. किसको काटेगी, प्रोटीन काटेगी. क्योंकि इसे जहां जहां प्रोटीन मिलेगा वहां वहां काटेगी, मतलब ये पूरे घर में हल्ला मचा देगी. इज दैट क्लियर? तो सोचिए, सीधी सीधी बात है. इसका मतलब क्या होगा कि जब खाना आ जाएगा, जब हमारे पास एक्स्ट्रा प्रोटीन आ जाएगा, हम तभी चाहेंगे कि जो पेप्सिन आपका काम करे उसके ऊपर. इज दैट क्लियर? तो सिंपल सी बात हम समझ सकते हैं इसके अंदर कि this pepsin is an active enzyme, pepsinogen is an inactive enzyme, HCl is needed for the conversion of the pepsinogen to pepsin which is a protein digestive enzyme which breaks the protein. Is that clear? और ये सिर्फ पेप्सिन के फॉर्म में इसलिए नहीं निकलता बिकॉज ये अगर ये सिर्फ पेप्सिन के फॉर्म में निकला तो ये बिना खाना आने से पहले पूरे स्टमक को खराब कर देगा, पूरी बॉडी के अंदर की सारी प्रोटीन खराब कर देगा. इज दैट क्लियर? इट विल बी डिटेरियोरेटिंग. इज दैट क्लियर?
Okay, then what is the Cassell's intrinsic factor, CIF? Is that clear? It is secreted into the gastric juice. What is the function of the CIF? It bind with the vitamin B12. It bind with the vitamin B12. क्या करता है आपका? विटामिन B12 से बाइंड करता है और विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को हेल्प कराता है किसमें? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. ओके, सो रिमेंबर द CIF binds with the vitamin B12 and help in absorption in the small intestine. याद रखिएगा कि अगर CIF नहीं होगा तो कुछ भी विटामिन B12 से बाइंड नहीं करेगा, और जब विटामिन B12 से बाइंड नहीं करेगा तो विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा इंटेस्टाइन के अंदर, चाहे आप कितना भी डाइट के अंदर विटामिन B12 खा रहे हो. इज दैट क्लियर? अब सोचिए विटामिन B12 इतना एसेंशियल क्यों है. याद रखिए जो विटामिन B12 हेल्प्स इन द मैचुरेशन ऑफ RBC. ओके, ये क्या करता है आपका? ये हेल्प करता है इन द मैचुरेशन जो RBC आपके बोन मैरो में बन रहे होते हैं उनको ये मच्योर करवाता है. उनको क्या करवाता है? आपका मच्योर करवाता है. तो अगर अगर आपकी डाइट के अंदर अगर आप विटामिन B12 नहीं लेंगे या फिर ऐसा है आपकी बॉडी के अंदर CIF नहीं निकल रहा तो विटामिन B12 अब्सॉर्ब नहीं होगा, मतलब आपके जो RBC हैं वो पूरी तरह से मच्योर नहीं हो पाएंगे. और अगर आपके RBC पूरी तरह से मच्योर नहीं हो पाएंगे तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? आपको उसे बोलते हैं पर्नीशियस अनीमिया. क्या बोलेंगे आपको उसे? पर्नीशियस, PERNICIOUS अनीमिया हो जाएगा. Is that clear? क्या होगा? Pernicious anemia. Okay, let's discuss the function of the prorenin. This prorenin is only present in the infants. Okay, कहाँ मिलता है आपको ये? Present in infants. ओके, याद रखिए जब एक छोटा बच्चा होता है उसका पेनक्रिया इतना ज्यादा डेवलप नहीं किया होता कि वो जो मिल्क जो माँ का पिए उसे आराम से पेनक्रिया के एंजाइम्स की मदद से डाइजेस्ट कर पाए, जो कि एडल्ट कर लेता है. इज दैट क्लियर? तो क्या होता है कि बच्चों के अंदर ही गैस्ट्रिक जूस में क्या निकलता है? आपका प्रोरेनिन निकलता है. ओके, प्रोरेनिन इज ओनली फाउंड इन द इन्फेंट. ये एडल्ट के अंदर प्रोरेनिन आपका नहीं मिलता या बहुत कम मिलता है. इज दैट क्लियर? तो प्रोरेनिन इज फाउंड इन द इन्फेंट. इट help in digestion of milk protein. Is that clear? ये मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन कराता है. कैसे कराता है? एक्चुअली ऐसा मान लीजिए, या ये इट्स अ काइंड ऑफ हाई लेवल थिंग यू विल स्टडी इन द 11th क्लास. ऐसा मान लीजिए इस चीज को कि जो मिल्क प्रोटीन होती है आपकी, उसे बेसिकली इट फॉर्म्स द कर्ड. एक कर्ड के जैसा बना देता है उसे. कैल्शियम पैराकैसिनेट बोलते हैं आपका उसे. दैट डोंट रिमेंबर दैट. ओके, इट फॉर्म्स लाइक अ कर्ड एंड व्हिच इज देन डाइजेस्टेड. ओके, तो क्या बोलते हैं आपका कि इट हेल्प द डाइजेशन ऑफ द मिल्क प्रोटीन बाय द हेल्प ऑफ द कर्डलिंग ऑफ मिल्क. क्या बोलते हैं आपका उसे? कर्डलिंग ऑफ मिल्क कराता है. Is that clear? So students, so we can say the digestive juice of the gastric juice of the adult contain HCl, mucus, pepsinogen, CIF, but not prorenin. But the digestive juice of the gastric juice of the infant contain the HCl, mucus, pepsinogen, CIF, and also prorenin, which helps in the digestion of the milk protein to the infants. Okay, so students, this is all for today. Okay, in the next class we're going to discuss about the liver. We're going to discuss about the pancreas, the small intestine, and the large intestine. Thank you.